یہ بتائیں کہ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایج بڑھانی ہے ججز کی؟ یہ چیزیں ساری کنسنسس ڈسکس ہو کے فیصلے ہونے ونس وی آر ریڈی کہ ہاں جی اب ہم کام کریں گے. عرفان صدیقی صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہم لا رہے ہیں. مجھے وجہ نہیں پتا کہ صدیقی صاحب نے کس بیسس پہ ایگزیکٹ ڈیٹ دیتی. آئینی ترامیم پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. آئینی عدالت اور ریٹائرمنٹ کی عمر سمیت تمام معاملات پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. معاملات ایک ہفتے میں بھی طے ہو سکتے ہیں اور ایک ماہ میں بھی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پروگرام خبر ود محمد مالک میں خصوصی گفتگو. کہا آئینی ترمیم کی کمیٹی میں فضل الرحمان نے کہا کچھ وقت چاہیے. ہم نے بحث روک دی اور مولانا کا مطالبہ مان لیا. آئینی عدالتوں کے لیے پیپلز پارٹی ہم سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے. حکومت آنے والے چیف جسٹس سے نہیں گھبرا رہی. ہمارے لیے تمام جج قابل احترام ہیں. آرٹیکل 63A کا عدالتی فیصلہ غلط ہے تو اسے ٹھیک ہونا چاہیے. ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات اچھے ہوں. بانی پی ٹی آئی پر بغاوت کا مقدمہ کیوں نہیں چلاتے؟ اس سوال پر نائب وزیر اعظم نے جواب دیا کاش بانی پی ٹی آئی 9 مئی نہ کراتے تو ان سے بات ہو سکتی تھی. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی. پیٹرول 2 روپے 7 پیسے سستا. پیٹرول کی نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا. لائٹ ڈیزل 1 روپے 3 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. مٹی کا تیل 3 روپے 57 پیسے سستا ہو گیا. قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری. میرٹ کرتے ہو عدلیہ میں میرٹ کیا ہے؟ میرٹ دیکھیں. مجھے اپنے نانا کو انصاف دلانے میں 50 سال لگے. آئینی عدالت ناگزیر. جوڈیشل پروسیس میں تبدیلی بھی ضروری ہے. معذرت کے ساتھ اس مرتبہ کالے کوٹ کی دھمکی میں نہیں آنا. اپنے منشور کی بنیاد پر آئین سازی کرنے جا رہا ہوں. صرف عوام کے پاس طاقت ہے وہ کہہ سکتی ہے صحیح کر رہا ہوں یا غلط. بلاول بھٹو کا وکلا سے خطاب. کہا پہلے صرف وکلا سیاست ہوتی تھی اب ججز سیاست بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے آج کل تعیناتیاں ہو رہی ہیں تو ریفارمز کرنا پڑیں گی. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق رائے بنتا ہے تو حکومت سے بات کریں گے. چاہتے ہیں آئین اور وفاق کے حوالے سے سیاسی کیس آئینی عدالت دیکھے. جب الگ آئینی عدالت ہوگی تو یہ کیسز وہاں چلائے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بھی یہی موقف رہا ہے. اتفاق ہوتا ہے تو ہم آئینی عدالت بنا سکیں گے. چیف جسٹس نے سینئر ترین جج کی سربراہی میں بینچ کی تجویز دے کر خود سربراہی سنبھال لی. فی الحال 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا. جسٹس منیب اختر کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا خط سامنے آ گیا. لکھا میری معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے. بینچ میں عدم موجودگی کا غلط مطلب نہ لیا جائے. میرا خط 63A نظر ثانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے. لکھا سینئر جج کو چیف جسٹس کا خط کردار کشی کی مہم زیادہ لگی. خط میں چیف جسٹس نے اپنی تعریف پر زیادہ زور دیا. اہم سوالات کے جوابات نہیں دیے. افسوس ہے چیف جسٹس نے آئینی سوالات کا جواب دینے کے بجائے یہ طریقہ اپنایا. جسٹس منیب نے لکھا 5 رکنی بینچ ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا. 17 اکتوبر 2023 سے کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں لیکن کبھی بینچ تشکیل نہیں دیا گیا. 18 جولائی 2024 کو 17ویں اجلاس میں اچانک کمیٹی ایجنڈے میں بینچ کا معاملہ آیا. بینچ کی تشکیل 9 جس طرح کی گئی اس کی وجوہات ڈھکی چھپی نہیں. بینچ کے معاملے پر غور ہونا چاہیے. چیف جسٹس نے جسٹس منیب کا رجسٹرار کو خط عدالت میں پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا ہے خط کو نظر ثانی کیس کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کیا. ریمارکس دیے ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے. کسی جج پر کسی مقدمے کی سماعت کے لیے زور نہیں دیا جا سکتا. جسٹس منیب اختر کہتے ہیں ان کے خط کو سماعت سے معذرت نہ سمجھا جائے. بینچ سے الگ ہونا ہو تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے. کوشش کریں گے جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوں. وہ راضی نہ ہوئے تو کل نیا بینچ سماعت کرے گا. بیرسٹر علی ظفر نے بھی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا. آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. رجسٹرار کو حکم نامے کی کاپی جسٹس منیب اختر کے سامنے رکھنے کی ہدایت.
रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें। इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला लिखने वाले जज के बगैर नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 3 के बजाय 2 रुकनी जजेस कमेटी ने 63A नजरसानी दरख्वास्त के लिए बेंच तश्कील दिया जो दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े आईनी बहरान पर फैसला करना होगा या फिर नए ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी। इस्लामाबाद जलसे में तकरीरों पर हुकूमत का एक्शन। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। तकरीरों के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के मुकदमात नाकाबिले जमानत होते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना से मामले की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त भी कर दी गई। थाना संजानी के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, शेख वकास अकरम, शोहेब शाहीन, शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर समेत 50 से 60 अफराद नामजद हैं। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा हत्थे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं, पेशावर ले जाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। वजीर आला हूँ, रास्ते में रुकावट डाली तो डंके की चोट पर मशीनरी इस्तेमाल करूंगा। हमें जहाँ जलसे का हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। बोले जेलों में कैद हमारी खवातीन औरतें नहीं हैं क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मरियम नवाज ही औरत है? मौलाना ने बता दिया कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, शुक्र है ज़मीर जाग गया। जो राज मौलाना के दिल में है वो भी बता दें। उज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को सस्ता अदाकार करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, नीरू बांसुरी बजा रहा है। वज़ीर आला कैसे दूसरे सूबे पर लश्कर कुशी कर सकता है? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को आपस में नहीं लड़ाया जा सकता। PTI दहशतगर्द जमात है। रियासत और इदारों को अब फैसला कर लेना चाहिए। कोई सियासी हकीकत दफन नहीं की जा सकती। कोई हमें दफन कर सका ना हम किसी को कर सकते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा अरब पतियों की जमहूरत चल सकती है ना डिलीवर कर सकती है। सियासी जमातों को दरबारी और खुशामदी चाहिए, सियासी कारकुन नहीं। कोई सियासी जमात अपने दस्तूर पर अमल करने को तैयार नहीं। अपनी क़यादत की इज्जत करें, पूजा ना करें। बलूचिस्तान आतिश फिशां बना हुआ है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वो कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं जिनका आइन पर यकीन ही नहीं। सियासी जमातों को मुश्तरका निकात पर इकट्ठा होना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने का फैसला। जराए का कहना है FBR ने तौसीक की दरखास्त वजीर खजाना को भिजवा दी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक की जा सकती है। नोटिफिकेशन वजीर आजम की इजाजत के बाद जारी किया जाएगा। ताजिर तंजीमों और टैक्स बार्स की जानिब से तारीख में तौसीक का मुतालबा किया गया था। आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। रश की वजह बैठ गया। 29 सितंबर तक 33 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इजाफी नोट में लिखा मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। तोशाखाना टू रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की दरखास्त से जमानत खारिज। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया।
के पी असम्बली में जनूबी वज़ीरिस्तान का नाम ज़िला महसूद रखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जनूबी वज़ीरिस्तान का नाम महसूद कबीले के नाम पर बदला जाएगा। असम्बली ओवरसीज पाकिस्तानियों के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड फौरी जारी करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। वफाक ने सैलाब मुतासरीन की रकम अपनी जेब में रखी। बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन के नाम पर वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $400 मिलियन वफाक ने अपनी जेब में रख लिए। अगली बार ऐसा ना हो सैलाब आए, कोई वजीर खारिजा और वजीर आजम जाए तो रिकॉर्ड देखा जाए। ये रवैया रहा तो कोई हमें इमदाद नहीं देगा। वो मुझसे पूछेंगे क्या आपने अपना वादा पूरा किया। माजरत के साथ कहता हूँ हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। सूबाई और वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसाइल को संजीदा लें। ये पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को पहुँचाएँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। नैब की रेफरेंस वापस करने की दरखास्त मंजूर। एजाज हारून समेत 7 अफराद के खिलाफ रेफरेंस वापसी की दरखास्त कायम मुकायम चेयरमैन नैब की जानिब से की गई थी। दरखास्त में कहा गया मुबैना मामले से हुकूमत को 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। सलीम मांडवीवाला का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जमीन को अभी तक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मुतफ़िक़ा तौर पर रेफरेंस वापस लेने की सिफारिश की। मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा रेफरेंस बिला जवाज़ है। तमाम 7 अफराद को नैब कानून के मुताबिक बरी किया जाए। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो इसे तरक्की कर दें। बलोचों की खिदमत यह है कि आप कौमी धारे में सियासत करें। जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुद को हमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं। इसराइल की पहली बार लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कल्ब में असलहा डिपो पर बमबारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन के 3 सीनियर रहनुमा शहीद। 24 घंटों में लबनान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। इसराइल ने बैरूत, वादी बका और एनुल दल्ब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। वादी बेका में एक ही खानदान के 17 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की ढिठाई, लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा, जो इसराइल पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। ईरान ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया की स्कूल में कायम मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। जबालिया और नसीरात कैंप पर हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। मगरबी किनारे से 17 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब। शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म के खिताब को 1,37,000 लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ का खिताब अमरीकी सदर जो बाइडन से भी ज़्यादा देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। आलमी मुबल्लिग़ डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। कराची में 100 साल पुरानी पुलिस चौकी लाइब्रेरी में तब्दील। अंग्रेज दौर की पुलिस चौकी पर किताबों की अलमारियां लग गईं। अब यहाँ मुल्जिमों से तफ्तीश नहीं, किताबों से इश्क किया जाता है। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने इमारत की तज़ीन व आराइश की। कानपुर टेस्ट में 2.5 दिन बारिश की नज़र होने के बाद भारत की तेज़ रफ्तार बैटिंग। बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में सिर्फ 3 ओवर में तेज़ तरीन 50 और 10 ओवर्स में तेज़ तरीन 100 रन बना डाले। 34.4 ओवर्स में 285 रन स्कोर करके 9 विकेटों पर इनिंग्स डिक्लेयर की। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 26 रन बना लिए।
पैंथर्स चैंपियन वनडे कप की पहली चैंपियन टीम बन गई। फाइनल में मार्क फोर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इवेंट का फाइनल एक तरफा रहा। मार्क फोर्स सिर्फ 122 रन पर ढेर हो गए। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ बासानी 18वें ओवर में हासिल किया। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स ने बराह रास्त दिखाए। जीता हुआ मैच हारना कोई जनूबी अफ्रीका से सीखे। अबू धाबी में आयरलैंड ने तारीख रकम कर दी। पहली बार जनूबी अफ्रीका को T20 इंटरनेशनल में शिकस्त दे दी। दो भाई प्रोटियास की पूरी टीम पर भारी पड़े। रॉस एडेयर सेंचुरी स्कोर करके दूसरे भाई मार्क एडेयर ने 4 विकेटें उड़ाईं। 196 रन के ताक़ुब में प्रोटियास को 12 गेंदों पर 23 रन दरकार थे। मार्क एडेयर ने एक ही ओवर में 3 विकेटें उड़ाकर मैच का पांसा पलट दिया। 12 गेंदों पर जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ी आउट हुए और आयरलैंड मैच जीत गया।